the question was by Dr. Farheen, and the question was related to potency selection during acutes. How do you select your potency during acutes? How do you repeat the remedies during acute? That was a question that was asked that after the acute, the live was over. So let us begin with that. दिक्कत क्या आती है कि जब हम acute केस को ट्रीट कर रहे होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, whatever might be the acute condition. So हमको ये नहीं पता होता कि हमको दवाई किस पोटेंसी में देनी चाहिए और रिपीट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक जो केसेस होते हैं उसका रिपीटेशन तो आपको बहुत सिखाया जाता है, चाहे वो 4th एडिशन की पोस्टोलॉजी हो, गिव अ सिंगल डोज एंड देन वेट एंड वॉच, दैट इज फॉर क्रॉनिक डिजीजेस. You give liquid solutions of the centesimal scale once a day or maximum twice a day. That is a chronic posology for chronic cases. Once a day, 50 millisimal scale, again, that is a chronic posology. How do you treat acutes and what is written in the Organon? So that is the first pending question that I'm going to answer. To understand this, you first need to understand how do you select the potency during an acute. Now, what I personally feel is, in general, when you read the books of posology, you will find that it is written that in acute cases, you should give moderate potency. Moderate potency means usually it is considered 200 potency, that is considered moderate. There can be lesser potencies also, sometimes 30 is also considered moderate, but 30 is usually considered lower potency. So moderate potency, 200 potency is what most people prefer. However, my idea is that your potency selection actually depends upon the kind of symptoms that you choose for treating acute. Not all potencies during proving give the same symptoms. Belladonna, when given in 3x potency, or aconite when given in 3x or 6x or 6c potency, has a very different action when the aconite is given in 1m potency. So what happens is, when you are doing a case taking, not every case is prescribed on the basis of mental symptoms. Now you have a belladonna case where you are prescribing for fever just on the basis of hot head, throbbing, flushing of face. That is all you have. There are certain cases where you don't get too much, and you're prescribing just on those physical symptoms. So then I prefer to choose a potency which has the ability to produce those physical symptoms. And most of the provings which have produced these physical symptoms have been done in the lower potencies. So when you give the remedy for very physical symptoms in an acute case, when you are giving colosynthesis for a case where the patient is better by bending double, a low moderate potency would suffice, because that is a physical symptom that is produced by a physical dose during the proving. The symptom is not produced by 1m and 10m and 50m and cm potencies. So, but if you are giving colosynthesis for an acute that comes after a severe bout of anger, then a 1m might suffice. But if you are giving colosynthesis for a colic that comes after eating cucumbers, then a low potency like 6C, 12C, 30C is more than enough. You have to match the potency with the kind of symptoms that you are using. So a very broad generalization you can make is that if you are prescribing a lot of physical symptoms, physical PQRS of the case, then prefer to use low potencies. The more mental symptoms you're using, the more mental causation you are using, the higher you can go for the potency. But you do not need to go very high. Beyond 1m you don't need, usually in most cases.
You can start with the lowest, not an issue, 3x, 6x, 6c, 12c, 18c, 30c, whatever you have on your hands, जो है आपके पास वहां से शुरू कर सकते हो। 30c या 30c से शुरू कर सकते हो, पर 30c जरूरी नहीं होता। बहुत सारे केसेस में 12c, 6c वो भी काम करता है। अच्छा, अगेन हाउ द फिजिकलिटी ऑफ द केस इज इंपॉर्टेंट। कितने फिजिकल सिम्टम्स हैं वो बहुत मैटर करता है इस चीज के लिए कि आप पोटेंसी क्या सेलेक्ट करते हो। तो एक जनरल रूल रखो अपने दिमाग में कि अगर आप ऐसे सिम्टम्स चूज कर रहे हो जो कि फिजिकल है नेचर में अक्यूट को ट्रीट करने के लिए, तो यूज लो मॉडरेट पोटेंसीज। अगर आप ऐसे सिम्टम्स यूज कर रहे हो जहां पर मेंटल कॉजेशन आ रहा है, आपने एलिमेंट्स आफ्टर एंगर लिया, एलिमेंट्स आफ्टर रेप्रिमांड लिया, एलिमेंट्स आफ्टर ग्रीफ लिया, अक्यूट ग्रीफ, एंड ऐसा कोई आप एलिमेंट्स लेके उसके बाद कोई अक्यूट का ऑनसेट आ रहा है, then go with a moderate to high potency 201 and that is good enough. अब सवाल आता है रेपिटेशन का। रेपिटेशन क्या होना चाहिए पोटेंसी का? सो इसमें हमको ये देखना होगा कि हैनेमैन ने क्या लिखा। हैनेमैन ने कहां गाइडलाइंस दी हैं अक्यूट के रेपिटेशन की? हैनेमैन ने अक्यूट के रेपिटेशन की गाइडलाइंस दी हैं 5th एडिशन में, अफोरिज्म नंबर 247 में। एक बार खोल के उसको पढ़िएगा। और 6th एडिशन में अफोरिज्म नंबर 248। इन दो अफोरिज्म्स में उन्होंने अक्यूट केसेस का रेपिटेशन मेंशन किया है। 247 की जब हम बात करते हैं 5th एडिशन की, तो सेंटिसिमल स्केल है जिसका रेपिटेशन है, और अगर हम 6th एडिशन की बात करते हैं तो 50 मिलीसिमल स्केल का रेपिटेशन है। अब सवाल ये आता है कि क्या लिखा है हैनेमैन ने? हैनेमैन ने ये लिखा है दोनों जगह, 247 में भी 246 में भी, चाहे आप 50 मिलीसिमल स्केल यूज करें चाहे सेंटिसिमल स्केल यूज करें, इन वाटर सॉल्यूशंस। ध्यान रखिएगा कि 50 सेंटिसिमल स्केल 5th एडिशन में जो दिया गया है वो पानी में डाल के है। हैनेमैन ने, जब हम कहते हैं कि एक ड्राई पिल दे दी या ड्राई डोज दे दिया या एक इवन वेट डोज देके हमने उसको वेट एंड वॉच में डाल दिया, तो दैट इज 4th एडिशन पोसोलॉजी। ऑर्गेनन की 4th एडिशन की पोसोलॉजी है। 5th एडिशन की पोसोलॉजी क्या है कि हमको वही सेंटिसिमल स्केल की जो दवाई है वो एक कांच की शीशी लेनी है, उसमें पानी डालना है, उसमें वो कुछ ग्लोब्यूल्स या कुछ ड्रॉप्स दवाई के डालने हैं, उसको सकस करना है और फिर वो हमको पेशेंट को देना है, चाहे वो अक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक केस हो। पोसोलॉजी 5th एडिशन की यही है। अब हैनेमैन ने रेपिटेशन के लिए क्या लिखा है? पहली चीज तो ये लिक्विड में क्यों गए? हैनेमैन 4th एडिशन में जो ड्राई डोज वेट एंड वॉच मेथड से 5th एडिशन में लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ द सेम डोज पे क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि हैनेमैन चाहते थे कि रेपिटेशन फ्रीक्वेंट हो, फ्रीक्वेंट रेपिटेशन हो, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। हमको 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन वेट नहीं करना पड़े किसी दवा को देने के बाद, कि उसका एक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद हम दूसरा डोज देंगे। और हैनेमैन चाहते थे कि द क्योर शुड बी एज रैपिड एज पॉसिबल। सो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द क्योर, he suggested that we put the medicine in a liquid solution and give it more frequently. तो अक्यूट के लिए उन्होंने कहा कि अक्यूट के लिए आप चाहो तो हर घंटे, हर कुछ घंटे में दे सकते हो। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो आप उसको हर 5-5, 10-10 मिनट से भी दे सकते हो। तो ये गाइडलाइंस हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग पोसोलॉजी इन अक्यूट केसेस, कि आपको रेपिटेशन आप नहीं डिसाइड करते हो कि कितना जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा, केस डिसाइड करता है। केस जितना अक्यूट है उतना फ्रीक्वेंट रेपिटेशन आप कर सकते हो। कितना फ्रीक्वेंट रेपिटेशन कर सकते हो? आप 5-5, 10-10 मिनट में कर सकते हो। अगर कोई कोलैप्स हो गया, कोई चक्कर खा के गिर गया, कोई बेहोश हो गया, आप उसको 5-5 मिनट से रेपिटेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डायरिया है जो कि दिन में 4 से 6 स्टूल्स हो रहे हैं डायरिया के, तो उसको आप 2 घंटे, 3 घंटे में रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को ऐसा डायरिया है कि उसको हर 15 मिनट में स्टूल आ रहा है, इनकंटिनेंस हो रहा है, तो आप उसको हर 15 मिनट से रिपीट कर सकते हो जब तक पेशेंट स्टेबलाइज नहीं होता। सिमिलरली अगर किसी के पेट में दर्द है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया 3-3, 4-4 घंटे से दवाई लो। अगर अक्यूट कोलिक है,
acute abdomen है तो आप frequent repetition करोगे उसको, चाहे 15 मिनट से करो, चाहे 30 मिनट से करो, चाहे 10 मिनट से करो। नियम ये है कि एक बार पेशेंट को रिलीफ आ जाए, वंस द पेशेंट इज अमेलियोरेटेड, यू डिक्रीज द रिपीटिशन या इवन यू स्टॉप द रिपीटिशन। अगर पेट में दर्द कम होना शुरू हो गया है, सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, देन यू डू नॉट रिपीट आफ्टर दैट। अगर पेट में दर्द कम होना शुरू हो गया है तो आप दवाई का रिपीटिशन भी कम कर दो। अगर किसी को सिर्फ जुकाम हो रखा है, अक्यूट है, बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है, आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार रेपिटेशन दे सकते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। So this is the posology in acute cases.